Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter that is the tale of Custard the Dragon of Standard 10th. As we have started this chapter, in the first part of this video, you have learnt till stanza 4. Now, today we will try to cover it as much as we can, since I don't want to make a so long video that it sounds to you like as a boring. I'll go through the explanation, line by line explanation, and I will also discuss about the literary devices used in this poem. So let's start without wasting time. We have completed till 4 stanza, so we'll start today with 5th stanza, and that is: Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful ink. A blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. Now, in this trickled, that means a stroke. I'm just telling you the word meaning. Trickled, that means a stroke. Here it means to tease, trickling means teasing. Unmerciful, that means cruel. Cruel, जिसमें कोई mercy नहीं होता है. Now, Percival, that means a knight, और एक योद्धा, जो इन किंग्स ऑथर कोर्ट, जो कोर्ट में जो दरबार में रहता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. So, in this stanza, Belinda used to stroke the dragon in a very cruel way. वो उसको बहुत अजीब तरीके से क्रूअल वे में उसको टीज करती थी. Ink, Blink and Mustard made fun of him by comparing him to a knight named Percival, who was thought to be brave but ran away due to lack of courage. तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसका मतलब मजाक उड़ाया करते थे. उसको एक नाइट, जो पर्सिबल नाम का नाइट था, जिसको कि माना जाता था कि वो काफ़ी ताकतवर है, लेकिन वो भाग गया था ड्यू टू लैक ऑफ करेज. उसने साहस नहीं दिखाया और वो लड़ाई छोड़ के भाग गया था, तो उससे कंपेयर किया करते थे. दे यूज टू टीज द ड्रैगन वाइल सिटिंग इन देयर लिटिल रेड वैगन. और वो उसका जो लिटिल रेड वैगन था उस पर बैठ करके उसको जो है काफ़ी टीज किया करते थे. नाउ लिटरेरी डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम जो है ए बी बी है. दैट इज़ अनमर्सीफुल, पर्सिबल, ए बी बी, बैगन, ड्रैगन. ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी. नाउ हम लोग रिफ्रेन देखेंगे. रिफ्रेन क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, दैट इज़ एन अ रियलियो ट्रूलियो. ठीक है. नाउ उसके बाद हम देखेंगे रिपीटेशन. रिपीटेशन क्या है? यूज ऑफ द वर्ड ट्रिकल्ड हिम. ट्रिकल्ड हिम. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे ट्रिकल्ड हिम. ट्रिकल्ड हिम यहाँ पे 2 बार है, रिपीटेशन हुआ है. अल्यूशन. अल्यूशन रेफरेंस टू एनी पर्सन और प्लेस, दैट इज पर्सिबल. ये रेफरेंस दिया जा रहा है, पर्सिबल का रेफरेंस दिया जाए, इसको हम अल्यूशन बोलते हैं. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुआ है इसमें. दैट इज इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल. तो पर्सिबल जो है एक अल्यूशन भी है और पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, दोनों है. नेक्स्ट स्टैंजा, we'll talk about next stanza. Now, stanza 6. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Now let us discuss about the word meaning first. The word meaning, that is giggled. Giggled means to laugh. To laugh. Giggled means to laugh. Wake. Wake here means, here it is the sound made by mouse. जो एक माउस जो आवाज़ निकालता है उसको हम यहाँ पे वेक बोलते हैं. और आई थिंक अदर वर्ड मीनिंग्स यू आर सो मच फेमिलियर विद दैट, आपको मालूम होगा.
Now let me explain the stanza. So in this stanza, the poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. Belinda काफ़ी ज़ोर से हंसती थी और उसकी आवाज़ जो है उस पूरे घर में गूंजती थी. Blink, the mouse used to laugh and make sound of wick. बेलिंडा भी जो है जो माउस ब्लिंक जो है वो भी काफ़ी हंसता था और विक करके एक साउंड उसके मुंह से निकलता था. ऑन अदर हैंड इंक एंड मस्टर्ड वुड टीज हिम बाय आस्किंग ड्रैगन हिज एज. और दूसरी साइड पे जो इंक और ये मस्टर्ड थे वो दोनों जो है इसका एज, ड्रैगन का एज पूछ करके उसको चिढ़ाया करते थे. वेन एवर ही यूज टू डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केज. और जब जब वो नाइस सेफ केज के बारे में बात करता था तो उसका एज पूछ करके उसको चिढ़ाया करते थे. Now we'll discuss about the literary device used in this stanza. Rhyming scheme है A B B, that is house, mouse, age, cage. A B B. फिर उसके बाद onomatopoeia that is usage of sound words to create a dramatic effect. ठीक है, वैसे शब्दों का मतलब यूज करना जो एक ड्रामेटिक इफेक्ट मतलब शो करता है. वो कौन सा है? गिगल्ड है, दैट इज गिगल्ड एंड विक. रिपीटेशन क्या है? कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. ठीक है, तो इसमें जो है रिपीटेशन आपका कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये आपका रिपीटेशन है. कस्टर्ड क्राइड. नेक्स्ट हम स्टैंजा देखेंगे. नेक्स्ट दैट इज स्टैंजा नंबर 7. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Now let me go through the word meaning first. Here nasty that means bad or unpleasant. Nasty का मतलब बुरा या फिर ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता हो. Unpleasant है. Growled that means bark, growling. Dogs usually growl. Pirate is, I hope you all know that what is called pirate. तो pirate क्या होता है बताइए. If you can tell me the word meaning earlier before I tell you. तो pirate का क्या मतलब word meaning होता है बताइए कमेंट सेक्शन में. पायरेट का मैं बता देता हूँ. चलो. अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी. पायरेट एक व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो समुद्र में जहाज़ों को लूटता है. अ विंडा हियर यूज्ड फॉर विंडो. विंडा यहाँ पे जो विंडा का मतलब हो वो विंडो होगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट. सो वाइल ऑल ऑफ देम वर मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन, दे हर्ड अ साउंड ऑफ समवन एंटरिंग द हाउस. जब वो सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे उसी वक्त उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि कोई घर में उनके एंटर कर रहा है. व्हेन दे लुक्ड टुवर्ड्स द विंडो दे सॉ अ पायरेट क्लाइंबिंग अप द वॉल. जब उन्होंने बाहर खिड़की से देखा तो देखा कि पायरेट जो है उनके दीवार पे चढ़ रहा है. देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट हिम एंड द किटन मियाउड. और जो डॉग है वो बार्क करने लगा और बिल्ली जो है मियाऊ करने लगी. बेलिंडा भी चिल्लाई. ओह नो. इंसान जैसे like they have their own style of showing the sorrow and showing the petty nature. Because of all them were scared of the pirate who robs ships. और ये सारे लोग डर गए थे क्योंकि वो पायरेट था और इस बात को लेकर के सारे लोग डर गए थे. नाउ इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज्ड हुआ है राइमिंग स्कीम फिर से ए बी बी है. दैट आई मस्ट टेल यू. साउंड अराउंड यू कैन सी, आप खुद से पहचान लेंगे. बेलिंडा, विंडा. ठीक है. नाउ इसमें कॉन्सोनेंस है. कॉन्सोनेंस क्या होता है? यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंस क्या होता है उसको अगर समझना है तो सीधा सा सी से कॉन्सोनेंट भी होता है, सी से कॉन्सोनेंस भी होता है. तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है इस आप देख सकते हैं. सडनली है ना. फिर उसके बाद दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. इसमें भी जो है इस साउंड का ज़्यादा एक मिक्सचर निकल के आ रहा है. इट्स नॉट मिक्सचर, सिंगली निकल के आ रहा इस साउंड. उसके बाद नेक्स्ट है
Onomatopoeia. Onomatopoeia, uses of a sound word, create a dramatic effect. जैसे मस्टर्ड ग्रॉल्ड, ओनोमोटोपिया में आप देखिए मस्टर्ड ग्रॉल्ड यहाँ पे ड्रामेटिक इफेक्ट दे रहा है. फिर उसके बाद मियाओ, मियाओ भी जो है ड्रामेटिक इफेक्ट दे रहा है. क्राइड इंक, पोएटिक लाइसेंस, इसमें जो है पोएटिक लाइसेंस दैट मीन्स विंडो इज रिटन एज विंडा टू क्रिएट राइम. और ये पोएटिक लाइसेंस जो है सिर्फ पोएट को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसको ये राइमिंग स्कीम बनाना था तो उसने विंडो के जगह पे विंडा लिख दिया. सो दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस. सो इफ एनीवन विल बिकम पोएट then you will have the license to change the word meaning, spelling of window. Now let's move ahead and read the next stanza, stanza number 8. Pistol in his hand, pistol in his hand, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Now let us discuss about the word meaning first. Pistol, I hope you all know that is a handgun. Pistol का मतलब handgun होता है, जो बंदूक होती है हाथ से चलाते हैं. कटलास, कटलास इज अ शॉर्ट स्वॉर्ड, छोटा सा स्वॉर्ड होता है कटलास. कटार जिसको बोल सकते हैं, कटार से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जो जिसमें कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं, मुड़ी हुई जो धार वाली धारदार चीज होती है, दैट इज कॉल्ड कटलास. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट. He says that the pirate was holding handguns in both his hands and had a little sword too. He was holding his sword with his teeth. He had a black beard and his one leg was made of wood. This means that this means that though the pirate was disabled person, but still he was frightening all the other characters. Moreover, he intended to harm them. ठीक है, तो इसमें पोएट एक्चुअली जो पायरेट का अपीयरेंस है उसके बारे में बात करता है, उसको दिखाता है कि कैसे वो उस दीवार पे चढ़ रहा था, दोनों हाथ में गन था उसके और मुंह में उसने स्वॉर्ड को दबा रखा था. और उसके बाद उसने बताया कि उसका अपीयरेंस जैसे ब्लैक दाढ़ी था, काली काली दाढ़ी थी, उसका एक पैर जो है लकड़ी का था, बट स्टिल पायरेट जो है डिसेबल पर्सन होने के बावजूद बाकी जितने कैरेक्टर्स इस पोएम में यूज किए गए हैं वो सारे लोग इससे डर रहे हैं और वो यहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा है. लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें यूज हुआ है, विल टॉक अबाउट दैट. राइमिंग स्कीम फिर से AABB है, राइट ब्राइट वुड गुड, ठीक है, तो AABB राइमिंग स्कीम है इसमें. एलिट्रेशन, दैट इज बियर्ड एज ब्लैक. एलिट्रेशन क्या है? बियर्ड वॉज ब्लैक, बी साउंड. ही हेल्ड, ही H, ठीक है. इमेजरी क्या है यहाँ पे? एन इमेज इज क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट. तो इमेजरी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे, एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस पूरे स्टैंजा में, ठीक है. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 9. Belinda failed and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. Now we will first talk about the word meaning. Paled, that means turn yellow due to fear. चेहरा पीला पड़ जाना, that is called, आप सब लोग को मालूम है जब डर बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे चेहरा पीला पड़ जाता है. एल्प मतलब होता है, एल्प का मतलब आप कह सकते हैं एक शार्प क्राई, छोटा सा चीख निकल जाना, डर के मारे चीख निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड एल्पिंग. ट्रिकल्ड का मतलब होता है, यहाँ पे ट्रिकल्ड का मतलब होगा, ऐसे तो ट्रिकी होता है कि वो कुछ गोली दे के निकल लिया, लेकिन यहाँ पे ट्रिकल्ड का मतलब होता है, यहाँ पे भी वही मतलब है, निकल लेना, वहाँ से भाग गया. स्ट्रेजिकली का मतलब होता है उसने प्लानिंग के साथ में वो प्लान किया हुआ था कि अच्छा कोई आएगा तो अब निकल लेते हैं. उसने चूँकि माउस जो है वो माउस होल्ड में रहता है, चूहे का बिल होता है उसमें रहता, तो वो घुस गया बिल में, ठीक है.
तो ये सारे लोग वहाँ से निकल लिए डर के मारे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। व्हेन ऑल ऑफ देम सॉ द पायरेट दे गॉट फ्रेटेंड। जब उन सारे लोगों ने पायरेट को देखा तो वो सारे लोग डर गए। बेलिंडा जो है काफ़ी डरी हुई थी और उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। इसी बीच मस्टर्ड जो डॉग था वो भी चिल्लाने लगा हेल्प के लिए। और किटन जो है, किटन इंक जो है, वो वहाँ से मियाऊ मियाऊ करके निकल ली, भाग ली डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस। कहीं कोने में जाके छिप गई, क्योंकि उसने प्लान किया हुआ था, स्ट्रेटजिकली उसने प्लान किया था। और द माउस इंक रैन इनटू हिज लिटिल माउस होल इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। तो उसने भी मतलब दोनों इंक हो और या फिर ये आपका जो माउस है, माउस एंड जो किटन है, दोनों उसने स्ट्रेटजिकली वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस। सेम है AABB, दैट इज़ राइमिंग स्कीम, ठीक है। हेल्प, एल्प, हाउस होल्ड, माउस होल्ड। फिर उसके बाद है ट्रांसफर्ड एपिथेट, टेरिफाइड एल्प। ट्रांसफर्ड एपिथेट आई थिंक यू शुड लीव दिस, ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। टेरिफाइड एल्प को जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। रिपीटेशन देखते हैं, रिपीटेशन है यहाँ पे, दैट इज़ हेल्प, हेल्प है, रिपीटेशन है। और पोइटिक लाइसेंस जो मिला हुआ है वो हाउस होल्ड, ठीक है। टू जस्ट मेक द वर्ड राइमिंग, है ना। तो माउस होल्ड एक बना दिया गया है। हाउस होल्ड हम लोगों ने वर्ड सुना है, उस हाउस होल्ड को मैच करने के लिए एक माउस होल्ड बना दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। नाउ वी विल डिस्कस स्टैंजा नंबर 10। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and clank and jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. चलो now we'll see first। बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड हैं, मीन्स वर्ड्स हैं जिसका वर्ड मीनिंग आप लोग को जानना चाहिए। स्नॉटिंग का मतलब होता है, वेयर इट इज स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मतलब होता है मेक अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू वंस नोज। आप अपने नाक से एक ऐसा एक्सप्लोसिव साउंड निकालते हैं जो मतलब किसी को डरा देगा। एक्सप्लोसिव का मतलब काफ़ी भयंकर आवाज़। क्लैस्ट, क्लैस्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, क्लैश का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। फाउट मतलब आप भिड़ जाते हो किसी से, भिड़ना कह सकते हैं। डंग्योन हियर मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन, डंग्योन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन। क्लैटर, क्लैंक, दैट इज़ अ साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। क्लैटर एंड अ क्लैंक मतलब यहाँ पे क्या होगा कि साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, जो ऐसा ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से टकराता तो जो आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लैटर एंड क्लैंक। नाउ नेक्स्ट इज जैंगलिंग स्क्विर। जैंगलिंग स्क्विर साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, ये भी सेम ही है। तो क्लैंक एंड ये दोनों का आप ऐसे ले सकते हैं। रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन का मतलब होता है अ बर्ड, एक पक्षी, बर्ड, अ बर्ड, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस stanza. So when all the other characters that were earlier defined as very brave got threatened, the dragon did the most unexpected thing. जितने भी सारे कैरेक्टर्स जो पहले उनको काफ़ी बहादुर बताया गया था, वो डर पोक निकले और वहाँ से डर के भाग गए। लेकिन जो ड्रैगन था उसने एक अनएक्सपेक्टेड चीज़, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, उसने वो काम किया। उसने क्या किया? He jumped onto the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. उसने पायरेट के ऊपर कूदी मार दी और कूदी मारने के बाद उसने अपने नोज से इतना तेज एक्सप्लोसिव साउंड निकाला, जैसे आप ट्रेन के इंजन का जो साउंड होता है ना, काफ़ी बहरा करने वाला, उस तरीके का साउंड निकाला। एंड नॉट ओनली दिस, ही हिट हिज टेल ऑन द ग्राउंड विथ ग्रेट फोर्स। और बस इतना ही नहीं कि उसने अपना जो टेल है, उसने अपने टेल को ग्राउंड पे इतने ज़ोर से पटका दैट इट प्रोड्यूस्ड हैवी साउंड ऑफ मेटल बीइंग रब्ड।
कि मतलब जैसे आप कोई मेटल को किसी दीवार पे रगड़ते हो तो कैसे एक कर्कश साउंड जो आता है उस तरीके का साउंड आया, राइट, लाइक तो ये सारी चीज़ें डराने वाली थी. ही अटैक द पायरेट जस्ट लाइक रॉबिन बर्ड दैट अटैक्स द वॉर्म्स. और इसमें पोएट बोलता है, कवि बोलता है कि उसने एक रॉबिन बर्ड के जैसे, जैसे रॉबिन बर्ड जो है कैसे वॉर्म्स के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके ऊपर जैसे अटैक बोलता है, उसी तरीके से ड्रैगन ने जो है पायरेट के ऊपर अटैक बोल दिया था. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल स्टैंजा नंबर. अच्छा, इसमें रह गया लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. ए बी बी है राइमिंग स्कीम, ठीक है. फिर उसके बाद स्क्वीन वॉर्म, और इसमें सिमली है. साउंड ऑफ ड्रैगन इज कंपेयर्ड विथ साउंड ऑफ इंजन. सिमली है, साउंड ऑफ ड्रैगन जो है कंपेयर किया गया है इंजन से. जो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन है आपका, ये आपका सिमली है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. फिर उसके बाद आपका क्लैस्ट हिज टेल्स लाइक आयरन, तो लाइक अ रॉबिन वॉर्म जो है ये भी आपका लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, ये आपका सिमली है. फिर उसके बाद इसमें ओनोमोटोपिया है, यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स दैट क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट. तो आपका क्लैटर हो गया, क्लैटर एंड क्लैंक, ये जो है आपका ड्रामेटिक ओनोमोटोपिया है. फिर आपका जैंगलिंग भी हो गया. और उसके बाद जो है इमेजरी क्या है, द अटैक बाय द ड्रैगन इज एक्सप्रेस्ड इन अ वे टू मेक एन इमेज इन आवर माइंड्स. तो ये अटैक जो है हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेज तैयार हो, इसलिए इसको यूज किया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed till stanza 10, since this is a ballad, and as you all know that ballad is a form of poem in which it goes on like as a short story. तो ये थोड़ा लंबा चलेगा. We'll try to complete this poem by next video. So you'll have to wait for the next video, and till then you just stay healthy, stay fit. Do watch the complete video for better understanding. Now we'll meet in next video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.